Pardon me for the delay. So today's topic, as I was told by everyone, that basically upon our outcome-based contracts and how we are going about it. Incidentally, we are the first division to do it, and there is a very enterprising group in this class. So right from health inspectors to J grade level officers, so it's good. So I'm Ranvijay Pratap, and I was senior DME. I am senior DME over here. Earlier I was CNW, now I'm Power. So I'll just quickly take you through a presentation that we have had. In this, I have also added the latest board circulars guidelines, which have eased our way out of this gem conundrum. And then let us have a round of discussions, and whatever will be your doubts and what will be our experience sharing. Basically, I'm not over here to teach or tell something. I'm over here to share my experience and learn from your experiences. So we'll just go through the presentation first, and people are free to intervene in between also. If I feel like for the benefit of all, I'll answer it then. Otherwise, we'll have a round of Q&A towards the end. So I'll just put my video off and share the screen of PPT, right? Right. So basically, what is sanitation? This I have tried to capture in one line. So often we say we are sanitizing things, we are doing this, we are doing that, and what is sanitation? So ये एक समझना बहुत जरूरी है कि what is sanitation. So sanitation is not cleaning, which you'll see in my subsequent slide also. हम लोग को ये लगता है and we have somehow thought that sanitation मतलब sanitize कर दो, clean कर दो, but no. They are very different in their objectives. So the difference is this. What is cleaning? Cleaning is जो दिखे गंदा, whatever is there which looks dirty, which we can see, and once we do the cleaning activity, it is not there anymore. So that means cleaning. Basically, it is removes 90 to 99% bacteria in that range, but still 1,000 bacteria may be present. So what are the type of cleaners? We all know, and this I have added this slide that it will be in your presentations also. Like we in any railway use all these, but these are board stipulated things. So I think many of you might be using already. But as I said, my objective always in any class is to share the experience and learn from your experiences. So please let me know if anything else you are using or what is the latest thing you are using. This is what we are using over here in NER type of cleaners. There is some chemistry behind it. So it is having a water soluble head and a oil soluble tail, and the cleaning agent then pulls out the dirt and muck outside the thing and it cleans. So this is basic chemistry, and I think the health inspectors in the group I might also be able to appreciate well because they have got a masters in biochemistry, I think, health inspectors. So this is the slide which I want you all to draw your attention to. Hello. Cleaning is not equal to sanitization, and why? अच्छा. So sanitization is, suppose आप लोग imagine करें कि कहीं पे lot of muck is there. Suppose some night soil is present, some cow dung is present. तो उसको नहीं कहते कि इसको sanitize कर. उसके ऊपर sanitizer डाल भी देंगे तो कुछ नहीं. आप clean surface को ही sanitize करते हैं. So cleaning is not equal to sanitization. And what does sanitization mean? It is treating a clean surface. Treating a clean surface to destroy and reduce the microorganism to a safe level. So basically ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत कॉमन चीज है कि हम लोग को कहते हैं सैनिटाइज कर दो सैनिटाइज कर दो. सैनिटाइज हमेशा साफ चीज को करेंगे. We can never do a dirty surface sanitizing. And what are the type of sanitizers? As we'll see, there are a lot of type of sanitizers. In fact, सूरज की रोशनी भी एक टाइप की सैनिटाइजिंग होती है because में UV किरणें होती हैं. Then we come, what is housekeeping? So my definition, what I have learned through my experience in field, through my experience in headquarters, through my association with the NHM wing, is that housekeeping basically can be summarized a place for everything and in everything in its place. अगर ये चीज है कहीं, हर चीज के लिए उसकी जगह है और हर जगह के लिए एक चीज है, तो ये एक हाउसकीपिंग का समरी है एक लाइन में. This might not be the textbook definition of housekeeping, neither do I claim कि मैं
टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बता रहा हूँ, बट मैं एक प्रैक्टिकल चीज से बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के लिए ऑलवेज इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये सब है, बट कि हर चीज उसकी जगह पे और एक जगह है सब चीज के लिए। तो ये हाउसकीपिंग है, और ये हम लोग की जो मदर्स हैं, जो हम लोग की वाइफ्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो किचन में हमेशा इसको फॉलो करती हैं। They always know कि where is the salt bottle kept, where is the sugar kept. You might be as a new thing, new guy going to a kitchen and आपको नहीं realize हो पाएगा। तो kitchen is the best example of a house kept place, a good house kept place, and the charity begins at home type की बात है। तो जरूरी क्यों है गुड हाउसकीपिंग, ये भी एक अगला प्रश्न आता है। तो मेरे हिसाब से ये हाउसकीपिंग इसलिए जरूरी है कि क्वालिटी, सेफ्टी, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, QSPCA होता है, इसको कुछ लोग CPSQ कहते हैं, या ये है, ये स्लाइड मैंने भी ली है कहीं से, इट्स नॉट माय ब्रेन साइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउसकीपिंग से होगा क्या, क्वालिटी एक वर्क की इम्प्रूव हो जाती है, सेफ्टी रहती है, प्रोडक्टिविटी इनहांस हो जाती है, और क्लीन एनवायरनमेंट तो दिखता ही है। अब हाउ डज इट हेल्प, तो एवरीथिंग इन इट्स प्लेस होगी जब, तो फिर एक चेन बन जाएगी, उससे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड हाई मोरल विल बी द आउटकम। तो ये तो एक आइडियल बात हो गई लास्ट वाली कि इफ इट इज द बेस्ट, बट वी कैन ऑलवेज कम टू द थर्ड लेवल, सर्चिंग टाइम इज एलिमिनेटेड। अगर एक हाउस केप्ट, गुड हाउस केप्ट जगह है, तो सर्चिंग टाइम, जो चीज को ढूंढने में, टूल ढूंढने में, सामान ढूंढने में, फाइल ढूंढने में, कुछ भी ढूंढने में, अगर वो रहेगा तो वो टाइम तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। मोराल ओराल तो चलिए आता रहेगा खुद के उससे, जज्बे से भी होता है। तो यही चीज उसको मैंने पॉइंट में समराइज किया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गुड हाउस कीपिंग। एक्सीडेंट एलिमिनेट हो जाते हैं, बेस्ट यूज ऑफ स्पेस होता है, मटेरियल टू मिनिमम रहते हैं, अमाउंट ऑफ क्लीन अप के लिए अमाउंट जो रखता है वो कम हो जाता है, एंड गुड वर्क प्लेस अपीयरेंस, जो एस्थेटिक है, एस्थेटिक इंक्रीज हो जाता है। Housekeeping is also safekeeping at work. It is basically a repeat of the previous slide, so it is okay. क्योंकि messy environment contributes to unsafe work practices and undesirable incidents, and which is why a tidy and good housekeeping improves safety. Now, what is a sign of poor housekeeping? So इसको इतने points की बताने की बजाय मैं आपका ध्यान एक फोटो की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आपको पता चल जाएगा कि poor housekeeping का sign क्या है। And what is a sign of a poor housekeeping poor housekept place? So see this, I have always believed that a photo is worth 1,000 words. So अब आपको देख के ही लग जाएगा कि ये एक जो लेफ्ट साइड वाली पिक्चर है, एक्चुअल में एक मैकेनिक के वहां की लेफ्ट साइड, राइट साइड वाली इज फ्रॉम शुगर बी क्राफ्ट, एक वेबसाइट है, but the left side picture is actually of a place, so it is giving a appearance of what exactly we mean by। अब आपको कई लोग कह सकते हैं, इनफैक्ट हम लोग भी जब पढ़ते थे या जो भी पढ़ते थे, तो उसमें हम लोग की बुक्स ऐसी रहती थी, हम लोग ढूंढ भी लेते थे, हमारे नोट्स ऐसे रहते थे, बट दैट डजंट मीन दैट नेसेसरली कि दैट वाज अ गुड हाउस केप्ट प्लेस। तो इट इज लाइक दिस। अब आपको, तो अगर खराब हाउस कीपिंग हुई तो व्हाट नेक्स्ट, मेथड्स टू इंप्रूव हाउस कीपिंग। We can keep our work areas clean, we can use proper waste containers, we can do 5S 6 sigma, ये सब चीजें हैं, आप लोग अपनी अपनी जगह पे कर भी रहे होंगे। कई जगह ऑर्गेनाइजेशन ही 5S और 6 सिग्मा सर्टिफाइड होंगी। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है विच आई वांट यू ऑल टू फॉलो वंस यू गो बैक फ्रॉम दिस प्रोग्राम। एंड वेल, इट इज अ रॉन्ग टर्म कि आप लोग क्योंकि ऑन कैंपस है नहीं तो गो बैक, आई कुड सी मेनी पीपल स्टिल इन देयर ऑफिसेज और बेचारे काम भी कर रहे हैं साथ में। सेम इज ट्रू ऑफ मी, बट या माई हार्ट गोज आउट फॉर ऑल ऑफ यू के काम के साथ साथ आपने पढ़ाई के लिए भी समय निकाला। सो बेसिकली मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सब लोग जो भी हैं, मे बी इट इज बिकी और हरदेव या आलोक, अल्पेश, whoever is there, whenever he goes back, मतलब जब थिंक करें, थोड़ा टाइम मिले आपको अपने शेड्यूल से, तो आप अपने एक हाउसकीपिंग प्रोग्राम डेवलप करें। आप एक लिखें कि आपकी हाउसकीपिंग प्रोग्राम है क्या, व्हाट इज अ प्लान ऑफ हाउसकीपिंग, व्हाट इज अ पॉलिसी, व्हाट इज शेड्यूल। पॉलिसी तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो बोर्ड और सबसे मिल जाएगी, बट अ केयरफुल प्लानिंग, और लास्ट वाला कंटिन्यूस सुपरविजन एंड एनफोर्समेंट ऑफ हाउसकीपिंग रूल्स करिए। यू आस्क योर हेल्थ इंस्पेक्टर्स, यू आस्क, और हेल्थ इंस्पेक्टर्स खुद जो हैं इस प्रोग्राम में, वो अपने आप में पूछें कि कितनी उन्होंने फाइन काटी थी पिछले महीने पैसेंजर्स की लिटरिंग करने के लिए, कितना इस बार काटा है, एंड व्हाट हैज बीन देयर इंक्रीमेंटल, व्हाट इज देयर गोल। एज एनएचएम ऑर्गेनाइजेशन वी नेवर हैव अ गोल, मेरे यहाँ तो था ही नहीं गोल कि हम क्या मंथली फाइन्स का गोल रखते हैं कुछ। एंड दिस इज एज इंपॉर्टेंट वर्क एज अ सीनियर डीसीएम्स वर्क इज टू हैव अ फाइन फॉर टिकट चेकिंग, उनका गोल रहता है, हमारी कोई गोल नहीं है।
कभी इंस्पेक्शन होने वाला है या कुछ होता है तो ठीक है, आपने 400-500 की रसीद काट दी या व्हाटएवर, बट वी शुड हैव अ गोल कि जो भी है लिटरिंग उसको एक बार टोकेंगे, नहीं हो रहा है तो उस पर हम लोग फाइन लगा देंगे। यहाँ एक मैंने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टाइप पे एक हल्का सा डेवलप किया था कि फर्स्ट टाइम उस आदमी का मोबाइल नंबर फीड कर लेते थे, और नेक्स्ट टाइम भी अगर कुछ ऐसा मिलता था उसका मोबाइल नंबर पूछते थे, अगर वो मैच करता तो उसका फाइन उठा काट देते। यू कैन मतलब आप लोग सोच सकते हैं, सब लोग यंगस्टर सब लोग के अलग अलग हो सकते हैं प्लान, यू कैन जस्ट हैव अ हाउसकीपिंग प्रोग्राम, राइट? ओके, so now we come to the real thing, which is gem. So this is what gem looks like. This is what is the gem when you open gem. It might keep on changing from day to day और इवॉल्व भी होता रह सकता है, बेसिकली यही ना है, लेकिन जो स्क्रीनशॉट जब मैंने लिया इट्स नॉट वेरी ओल्ड, सो ये एक जेम रहेगा। व्हाट इज जेम? सो व्हाट इज जेम बेसिकली? शुरुआत से अगर शुरू करें तो जेम है क्या बेसिकली ना, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है बेसिकली। ये हम लोग का अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, आप समझ लीजिए। और जैसे पहले था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाई, DGSND, उसी तरीके का ये एक मार्केट प्लेस बना दिया है, क्यों बना दिया है? हमारे पुराने उसमें क्या दिक्कत थी, ये सब इज फॉर अ डिफरेंट, थोड़ा गर्म पानी, ये सब थोड़ा सा डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट वो है, बट बहुत लोग को ये पता नहीं होगा, और ये मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो सॉरी, तो जेम आया क्यों? जेम इसलिए आया कि many people were claiming, and many people were, especially the many firms were having this claim कि साहब आप लोग IREPS पे कर लेते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता, और हम लोग और अच्छा रेट दे सकते थे और कुछ कर सकते थे। देन गवर्नमेंट हैड दिस व्यू कि चलिए कॉमन पोर्टल बना दें, बट उसमें आप लोग ये भी कह सकते हैं साहब IREPS भी कॉमन पोर्टल ही था, वो तो फर्म्स का बहाना है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगेन आई डोंट से दैट आई एम द होल एंड सोल अथॉरिटी ओवर दिस सब्जेक्ट एंड ऑल दैट, बट जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने देखा, जेम फेमस कैसे हुआ, जेम स्टार्ट ऐसे हुआ, इवॉल्व ऐसे हुआ, कि उसमें जेम में आप लोग को सबसे पहली जो नई चीज आई वो आई व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट्स। और व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट्स जेम में आया कि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल व्हीकल पैकेज देने लगे। बाय आवर्स ले सकते हैं, बाय आप किलोमीटर्स ले सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा किलोमीटर एड ऑन कर सकते हैं, तो उसमें नाइट चार्जेस वगैरह अलग से जोड़ सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप एक फील्ड में अफसर को देना चाह रहे हैं गाड़ी, उसमें आप लेना चाह रहे हैं, उसमें आप लेना चाह रहे हैं कि साहब उसको हम 10 तो तो उसमें क्या हुआ, यू कैन कस्टमाइज द थिंग, जो कस्टमाइजेशन दिया जेम। और एग्जीक्यूटिव के लिए क्या फायदा हुआ, उसको उसको बहुत सारे पेपर वर्क नहीं करने पड़े, बिकॉज हम लोग क्या, हर हमेशा एक नया टाइप का बिड बनेगा तो अकाउंट से वेट कराएंगे, हेडक्वार्टर से दिखाएंगे कि नया बिड डॉक्यूमेंट है। जेम ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप केवल माउस के क्लिक से अपना अपना रिक्वायरमेंट क्लिक कर लें कि आपने इतने नाइट चलानी है, इतना डे चलाना है, इतने किलोमीटर चलाना है, इतना एक्स्ट्रा किलोमीटर चलाना है, इस टाइप की गाड़ी चाहिए, वो सब क्लिक ऑफ माउस से आपने अपना एक बास्केट बिड टाइप की बनाई, और उस बास्केट में आप उसको पूछ सकते हैं, आप उसको आपने फ्लोट कर दिया टेंडर, तो ये वहां से चालू हुई चीज। और आज ये इस तक पहुंच चुकी है कि ऑल द हाउसकीपिंग, ऑल द जेम कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ सपोज्ड टू बी डन थ्रू जेम। एक उसमें दूसरा भी फायदा है सरकार का कि ये पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि नहीं, कि जब तक IREPS को होता था तो कोई वो फीस नहीं देता था सरकार को, IREPS को। मतलब मान लीजिए मैं XYZ फर्म हूँ, मैंने मिस्टर अंकुर गुप्ता से टेंडर लिया, तो जो अंकुर गुप्ता साहब ने हमको जब टेंडर दिया,
तो मुझे कोई पैसे नहीं देने थे किसी पोर्टल को, लेकिन जेम पे अगर मुझे मान लीजिए सपोज हरदेव सिंह साहब ने मुझको एक दिया ठेका दिया जेम पे, तो मैंने वो ठेका जीता है बिन टेक कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे उसका 0.5% जेम को जमा करना पड़ा, तो उससे सरकार की अर्निंग भी बढ़ी। तो ये एक चीज है जो कि आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस। ये मैंने बताया कि डीजीएसएनडी का वो है। एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट आप लोग कहते हैं कि जेम पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कुछ, लेकिन 5 लाख तक हम लोग सेम बिना किसी उसके सीधे डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं, जिसे कहते हैं आप मतलब आप लोग उसको जेम से 5 लाख तक है, उसके बाद कंपैरेटिव चार्ट बना लीजिए और उसके बाद सीधे अपने जे ग्रेड दिखा दीजिए या कुछ करके अपना अवार्ड कर दीजिए उसको। बेसिकली इसमें यह है कि आप खुद ही जिसको चाहे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं 5 लाख के नीचे वाले में। तो और नहीं तो आप उसमें जेम ऑटोमेटिकली भी अलॉट कर देता है। आपके मान लीजिए 4 लोग हैं 4,50,000 के, तो आप उसमें एक प्रोग्राम चूज कर सकते हैं कि ऑटो अलॉटमेंट, या आप उसमें से खुद भी किसी को चूज कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है। तो ये है ही है कि 3 टाइप के हैं वहां पे बेसिकली। एक है 5 लाख से कम जो मैंने अभी डिस्कस किया, दूसरे 2 जो हैं वो हैं बाय चूजिंग फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ सर्विस या कस्टम बिड। जब हम लोग लखनऊ मंडल में थे इन लखनऊ डिवीजन, वी नेवर हैड एन ऑप्शन ऑफ ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस या बायो टैंक या मैकेनाइज कोच क्लीनिंग। हम लोगों ने जब जेम में शुरुआत की तो हमारे पास जो फर्स्ट टेंडर था जेम का, वो पहले तो व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट सबने किए, बट जो आउटकम क्लीनिंग किया वो स्टेशन एक हमें करने का चैलेंज मिला था कि आप हमारे पास खलीलाबाद उसको हमें आउटकम बेस्ड करना था। तो बेसिकली तब हमारे पास डायरेक्ट परचेस कर नहीं सकते थे बिकॉज उसका जो एस्टिमेट था वही 5 लाख से ज्यादा था। प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम चूजिंग अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ सर्विसेज पे हम लोग गए, क्योंकि तब तक कस्टम बिड का ऑप्शन आया नहीं था जेम पे। ये मैं 2019 के सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ। तो जब कस्टम बिड का नहीं आया था, तब हम लोगों ने प्री डिफाइंड सर्विस की जिसका नाम था क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन, जो अभी भी है। आप क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन पे जाएंगे तो वो क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन को क्लिक करेंगे एंड उसमें आ जाता है कि आप किस किस टाइप का फ्रीक्वेंसी आप चाहते हैं, कितना एरिया क्लीन कराना चाहते हैं, किस किस चीजों से साफ साफ कराना चाहते हैं, उसमें कच्चा कितना है, कि उसमें क्या मॉपिंग है, स्वीपिंग है, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंगली उसमें क्या है कि मिनिमम रेट जो आपका बेसिकली एस्टिमेटेड रेट भी होगा और जो मिनिमम आता है वो 1 पैसा पर स्क्वायर मीटर ही है। स्क्वायर फीट की स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट 0.01 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो वो क्या है कि एक तरीके से एस्टिमेट आपका हो जाता है कि मिनिमम, मतलब ये थोड़ा सा उसमें मुझे भी हल्का सा अजीब लगता है कि चाहे आप उसमें उससे कहते हैं कि रोबोट से साफ करा लो, चाहे कहते हैं कि सिंपल झाड़ू लगवा दो, लेकिन उसका मिनिमम रेट है 1 पैसे पर स्क्वायर फीट। तो हम लोगों ने उसको उससे किया था प्री डिफाइंड लिस्ट से। बाद में जब हम लोगों ने जेम को लिखा, यहाँ पे बहुत चर्चा हुई, रोड टू हेडक्वार्टर्स, हम लोगों ने जेम से बात की, तब एक ही ऑप्शन आ गया कस्टम बिड। तो दिस कस्टम बिड इज वेरी हेल्पफुल। कस्टम बिड से क्या हुआ, हम लोगों ने ओबीएचएस जैसे और मैकेनाइज्ड कोच क्लीनिंग भी, बायो टैंक भी हम लोगों ने कस्टम बिड के माध्यम से किया। नाउ व्हाट इज कस्टम बिड? कस्टम बिड इज लाइक यू मेक योर ओन बिड। कस्टम बिड में कोई इतना बड़ी चीज नहीं है। इफ आई कम टू कस्टम बिड, उसमें कुछ करना ही नहीं है। उसमें आप सीधे ये देखिए, इस चार्ट में आप देखेंगे कि कस्टम बिड बेसिकली कुछ नहीं है, उसमें क्रिएटेड व्हेन डिजायर्ड सर्विस इज नॉट अवेलेबल ऑन जेम। तो आपके पास जैसे मान लीजिए यू रिक्वायर अ स्पेसिफिक सर्विस, जैसे आजकल लॉन्ड्री चल रहा था, लॉन्ड्री एट ओनर्स, हालांकि आ गया है अब जेम पे, लेकिन ओबीएचएस उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। और कोई भी ऐसी सर्विस, मान लीजिए आपको एक एक कुछ ऐसा करना है कि आपको अपना ऑफिस भी उसमें साफ कराना है, कोचिंग डिपो भी साफ कराना है, तो एक तो आप बंच बिट कर सकते हैं। उसमें तरह तरह की सेम सर्विस अगर आपको 3-4 जगह लेनी है तो बंच बिट करके सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो दैट इज अवेलेबल कि आपने सेम सर्विस है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 2-3 टाइप की सर्विस है आपकी, कि आपको कोच भी साफ कराना है और दूसरा उसी में गाड़ियों को भी साफ करानी है, आपको नीचे उसका पिट भी साफ करानी है, तो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज अगर है, किसी में स्टेशन आपको वाटरिंग करानी है, तो उसको आप एक कस्टम बिट करके बनाएंगे। बेसिकली आप अपनी रिक्वायरमेंट आप एक वो कर देंगे, बना देंगे। और उसके बाद आप अपने जीएआर क्रिएट कर देंगे। जीएआर क्या चीज? हाँ, जीएआर बेसिकली क्या होता है कि जीएआर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इट इज जेम जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। बेसिकली हम लोग उसको कॉमन पार्लेंस में आप लोग कहते हैं अनअवेलेबिलिटी कि साहब आप कस्टम बिट तो तब बनाएंगे ना जब आपके जेम में आपने सर्टिफिकेट ले लिया कि साहब हमारे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है।
जैसे हम लोग को विकेस करना था या बायो टैंक मेंटेनेंस करना था, तो हमने जब ये 8, 10, 12 कीवर्ड्स डाले, तो जब नहीं था उसमें अवेलेबल तो हम लोगों ने लिख दिया कि उसकी अनअवेलेबिलिटी रिपोर्ट लगाई, और फिर हम लोगों ने कहा कि इसको हम लोग कस्टम बिड लेते हैं। जब हम लोग ये करते थे 2019 या 20 की बात कर रहा हूँ, तब उसमें एक एसएजी अफसर से, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ हाँ, कैरेज कंट्रोल से पूछ लीजिए भाई। हाँ अपने, अरे अपने कैरेज कंट्रोल से पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, चलो ठीक। तो सॉरी, तो आप क्या करेंगे कि एक जनरल जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट निकालेंगे। उसके बाद अर्लियर इट वाज कि हम लोग को अप्रूवल लेना होता था, जो कि अब Sir, your voice is not audible, sir. हाँ, so now this was the slide where I left that gem unavailability or availability report आप निकालेंगे, and then the next change and the only change is कि SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी हैं। तो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है हमारी, उसे 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 एसएलए कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो व्हाट हैपेंस इज कि जो जनरल बिड है, जिस जो ऑलरेडी है, जैसे कि व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट है या लॉन्ड्री अब है या कोई भी है, उसका एसएलए ऑलरेडी उसमें है। तो एसएलए इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो हमें अगर कस्टम बिड करनी है तो उसका एसएलए हमें बनाना है, बिकॉज जो सर्विस ही नहीं थी तो उसकी कंडीशंस जेम पे ऑब्वियसली नहीं होंगी। तो उसको हम लोग को अपना एसएलए बना के हम लोग उसको अपलोड कर दें, और वो ओवरराइड करेगा जीटीसी, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हमारा जीसीसी होता है रेलवे में, वैसे ही जेम का जीटीसी होता है। तो वो एसएलए जो होता है दैट इज ओवरराइडिंग ओवर जीसीसी। फॉर एग्जांपल एक हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि we included 7-day 48-hour day notice and all that as our SLA, that was not in GEM, ताकि ताकि we have that catch over him ना, कि we have that, because GEM में क्या है कि we only have to raise instance, एक instance raise हुआ, दूसरा instance raise हुआ, but the contractors are also not very well versed, neither the railways are well versed, so हमने उसमें SLA में ही अपना 7 day notice, 48-hour notice, 1 month notice, ये सब करके warning का डाल दिया। Rest things are same in GEM. I have included a step wise detail on suppose आपको मैकेनाइज स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट करना है जेम पे, तो how you will go about it, so that you people can see at your leisure and download it. Basically इसमें डैशबोर्ड पे जाना है, उसके बाद फॉलो द स्टेप्स करना है बिड क्रिएशन का, जैसे कि हम लोग अमेजोन या उसमें करते हैं। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट आप जो स्टेप 3 है उस पर ध्यान दें कि यू कैन ऑलवेज अप्लाई अपलोड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर स्कोप ऑफ वर्क, लिस्ट ऑफ कंज्यूमर, वो खुद कर सकते हैं। अगर वो सर्विस है भी तब भी कर सकते हैं, तो कोई उसमें बात नहीं, आपको उसमें कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सर्विस अवेलेबल, जैसे सैनिटेशन सर्विस अवेलेबल है, आप उसको अपलोड कर दीजिए अपने स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन की। सपोज आप कहते हैं कि
कोविड चल रहा है तो आप उसको हाइपोक्लोराइड से भी साफ करना है, या इतने परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोराइड से साफ करना है, या ये मशीन यूज करनी है, ये करना है, यू कैन अपलोड इट विदाउट मेकिंग एनी वो कस्टमाइज्ड बिट। फिर जैसे जो चलता है वैसे ही चलेगा। 21 डेज में आप खोल सकते हैं, आप तो 10 डेज में भी खोल सकते हैं, बट क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज वो तभी 10 डेज में करिए, अदरवाइज 21 डेज में करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि बाय डिफॉल्ट एवरी बिट इज 2 बिट, एवरी बिट इज 2 पैकेट सिस्टम बाय डिफॉल्ट। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उसमें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप जब पहला उसको टेक्निकल बिट खोल देंगे तो सबके पास एक विंडो जाएगी जिसको आपने नई अनसुटेबल रेंडर किया है 48 आवर्स की, कि 48 आवर्स में वो अपना रिप्रेजेंटेशन अपलोड करें, फिर आप उसका जवाब देंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑफन आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि 21 डेज के बाद हम 22nd के टेंडर ही देते हैं। आपको 48 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, वो जेम ब्लॉक कर देता है। इट इज अ विंडो फॉर द पीपल हु हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द पार्टिसिपेशन प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन इट। ओके, ये एवोल्यूशन की एक मैंने हम लोग के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम देखी थी हमारी टीम ने यहाँ लखनऊ डिवीजन में। तो पहले क्या था कि कस्टमाइज बिट थी नहीं, इट वाज वेरी टफ। तो कस्टमाइज बिट अब आ गई है। पहले कस्टमाइज बिट के लिए हमको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना था, एंड देन देयर वाज वेरी कंफ्यूजन कि मंडल में कि डीआरएम कॉम्पिटेंट है, कि डीआरएम कॉम्पिटेंट है, कि डीआरएम कॉम्पिटेंट है या कौन कॉम्पिटेंट है। तो हम लोग को यही नहीं पता था कि कौन कॉम्पिटेंट है या नहीं कॉम्पिटेंट है। तो बट ये सब चीजें हट गई बिकॉज नाउ चलो तो तो जब ये चीजें हटी गई कि कौन कॉम्पिटेंट है नहीं कॉम्पिटेंट है, तो देन दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, बिकॉज दैट reduce the time, reduce the administrative time. एक हम लोगों ने लिस्ट डाली है कि हम लोगों ने मैकेनिकल C&W LJN ने क्या क्या किया है। ENHM भी इसमें इंक्लूडेड है because ENHM is under C&W only over here. So we have done a lot of contracts like direct purchase, like vehicles and all, then service bunch bids, like a lot of things, station cleaning and all. Suppose you have to do station cleaning at the same place, RBPC also, so you can do a service bunch bid, and then custom bid भी की है हम लोगों ने OBHS और मैकेनाइज्ड पोस्ट क्लीनिंग और बायो टॉयलेट टैंक्स एंड ऑल। तो हम लोग अब सब तरीके से इसमें हो चुके हैं। And we are also processing for laundry. Let us see कि इस पे हो पाता है कि नहीं, because laundry का जो ऑलरेडी इसमें है जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो add users premises, so which is why service is available, but let's see what they do. एक ये चार्ट बनाया था मैंने कि कितनी परसेंटेज सेविंग हुई जेम से जाकर। तो ये सेविंग्स इन परसेंटेज एक थोड़ा सा इंडिकेटिव है आप लोग को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप रेलवे की कितनी रेवेन्यू बचा सकते हैं। दूसरी मेरी ये राय रहेगी आपसे कि जब आप लोग कोई भी जेम पे पहली बार करें तो प्लीज डू नॉट गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप अप्रूवल ले लीजिए, आप इंटीमेट कर दीजिए कि भाई हम 1 महीने के लिए करें, 1 साल के लिए करेंगे, या 1.5 साल के लिए करेंगे, या 1 साल के बाद उसको रिव्यू करेंगे। बिकॉज जेम स्टिल इज अ वेरी नेसेंट पे। जैसे आपको 50% सेविंग हुई, जैसे मैंने अपने 1 साल में यहाँ पे 20-25 करोड़ रुपए की सेविंग हो रही है। तो बट मैं तो आप लोग को ये भी अब तो हम लोग क्योंकि काफी आगे और डिविजन्स भी हैं, तो कोई भी चीज पे आप जैसे प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग का मैं क्वेश्चन भी देख रहा था कि साहब एस्टिमेट कैसे बनाए अगर जेम पे करें। तो अब आप ये ले लीजिए कि जेम जहां पे भी हुआ है, wherever जेम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिमिलर टाइप हैज बीन डन, यू टेक इट्स LAR and make your LAR. Because when we were there, we were not having anybody to look forward to, so we made a zero based estimate. और कई बार हम लोग उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड भी हुआ ये सब। लेकिन अब आप लोग उस चक्कर में पड़ के जहां पे भी जेम का कहीं भी उस प्रकार का हो रहा है उससे आप LAR लीजिए और अपना सीधे जेम पे आप फ्लोट कर दीजिए। आई सजेस्ट ये सबसे सीधा और सबसे कम एफर्ट का रास्ता है। ये एक कुछ मैंने चिट्ठियां डाली हैं क्योंकि एक जगह इन चिट्ठियों का होना बहुत जरूरी है। कि इसमें लिखा है, देखिए, एग्जाम्पलरी पेनल्टी कैन रिड्यूस प्रिवेंट कोटिंग ऑफ वन वर्कर। किसी ने कह दिया हम 2 ही लोग से सब साफ करा लेंगे, पूरी ट्रेन 2 लोगों से साफ करा, तो अव्वल तो आप उसको देंगे नहीं, क्योंकि उसको जो स्टैंडर्ड बिग डॉक्यूमेंट का एवोल्यूशन क्राइटेरिया है वो आप अपने SLA में ऐड कर दीजिए कि उसको मैन पावर बेसिस पे भी आप उसको नंबर दीजिए, और उसके बाद 60% या उससे कम हो तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। ये एक अभी आया था कि एक्टिविटी बेस्ड, इसी चिट्ठी के बाद से 20/1/2022 के बाद से बहुत बड़े तर्ज पे हुआ कि हम लोग को सब कुछ ये करना है एंड आउटकम बेस ही करना है।
नाउ डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो जेम के हैं, ये देखिए, एक मैंने ये लगाई हुई है, ये मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि आप लोग को खुद अपने जे ग्रेड अफसर को, अपने ब्रांच अफसर को या अपने सीनियर स्किल अफसर को परचेजर बनाना पड़ेगा अपने विभाग। अगर आप स्टोर्स के थ्रू जाएंगे तो उसके पास तो इतने सारे टेंडर्स करने के लिए होते हैं कि देन यू विल नॉट हैव दैट मच प्रायोरिटी फॉर योर वर्क। और उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर ठेका कोई और दे रहा है और काम आपको लेना है तो देन दैट बिकम्स अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। तो आप खुद ही एज अ बायर रजिस्टर होइए। खुद रजिस्टर होने से मतलब है जो भी जिसका टेंडर पावर है, सीनियर स्केल का होगा, जे ग्रेड का होगा, उसको आप एज अ बायर रजिस्टर कराइए। एंड देन बाय दिस एसओपी यू हैव सेम पावर्स इन जेम। जैसे मैंने रात ये एडिशनल रिमार्क में लिखा है, जो पावर्स अंडर दिस आइटम शैल बी आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर प्रोक्योरमेंट सर्विस थ्रू जेम। ओके, ऑल आर दीज सम लेटेस्ट सर्कुलर्स रिगार्डिंग पीजी सबमिशन जो आया था, इसमें इन लोग को 3% ही कर दिया था। तो एमएसएमई के लिए शायद वो भी एग्जाम्पशन है। वो सब आप लोग ध्यान में रखें थोड़ा, क्योंकि बाद में इसमें इश्यूज हो जाते हैं ना। दिस इज अ वेरी लेटेस्ट लेटर, 19/4/2022 का लेटर है जो मैं भी जस्ट ऐड कर रहा था। ये कहता है कि बिकॉज लॉन्ड्रीज हैव स्टार्टेड, तो जब लॉन्ड्री स्टार्ट हुई तो कुछ था ही नहीं कि कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा था। तो फिर एक अच्छी चिट्ठी निकाली है ईडी ट्रांसफॉर्मेशन साहब ने कि DRMs कैन एंटर इनटू एनी नंबर ऑफ एनी अमाउंट, है ना, 3 महीने के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। तो रिस्टोरेशन सर्विस, तो इसका आप लोग यूज करके रिस्टोरेशन ऑफ जेम भी कर लेंगे। एक मैंने क्वेश्चन देखा था आप लोग की क्वेश्चन लिस्ट में था, तो उसको मैंने इसमें जस्ट जोड़ दिया कि कैसे बिलिंग इनवॉइस जनरेट होता है जेम पे, बिकॉज इट इज टू बी वेरीफाइड एंड देन सेंड टू बायर्स जेम आईडी। यू नो, जेम पे आपको जेमी के थ्रू बिलिंग होती है। तो सर्विस प्रोवाइडर से आएगा कंसाइनी के पास, और उसके कंसाइनी के बाद ये जाएगा वेरीफाई होके बायर्स, बायर के जेम आईडी पे। बायर मतलब हम लोग, जिसने टेंडर जिसने ऑर्डर दिया, एंड बिल वो फिर बायर सेंटर प्रोसेस होके फिर हम लोग उसको प्रोसेस कर देते हैं अकाउंट्स के पास। तो ये सब यही इसी से हो जाता है। ये बड़ा अच्छा फीचर है। आप लोग अगर इसको थोड़ा सा वो करेंगे तो इससे भी चीज काफी इजी हो जाएगी। एंड दिस इज द फाइनल स्टेप कि उसको फॉरवर्ड कर देगा अकाउंट्स को फाइनल पेमेंट, राइट। दिस इज माय लेटेस्ट। वो कि इतना सब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रेल मंत्री भी सम्मानित कर सकते हैं ऑन अ लाइटर नोट। तो थैंक यू, दैट वाज फ्रॉम माय एंड, and I'm free for any question or answers or whatever might be the right. Anybody having any issue or doubt or just any experience sharing is free to please let us know. How the contract value is calculated and what are the yardsticks? बताओ कि जेम बकवास है, ये जबरदस्ती हम लोग के सर पे डाल दिया गया है, ये भी हो सकता है, तो भी लगा था। तो कुछ भी एक्सपीरियंस शेयरिंग, कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन, कुछ हो, अदरवाइज यू हैव माय नंबर, स्मृति मैडम हैज माय नंबर, प्रोफेसर साहब हैज माय नंबर, सो फील फ्री टू लेट मी नो व्हाटएवर। और एक मैं और चीज आपसे शेयर करूंगा कि आप सब लोग कुछ भी नया करने से पहले जहाँ पे चल रहा है उससे एक फीडबैक मंगा लीजिए कि साहब आपने जेम पे दिया था सो एंड सो कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इज द फीडबैक, एंड सो दैट समटाइम्स एट टाइम्स इफ सम सर्विसेज आर नॉट गोइंग गुड ऑन जेम, सो यू विल गेट टू नो अर्ली एंड यू विल हैव अ केस कि साहब इसको शायद जेम से अभी करना नहीं ठीक है या आउटकम बेस्ड करना नहीं ठीक। दो चीजें, एक जेम है, पोर्टल है, एक आउटकम बेस्ड। दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। पोर्टल पे हम अपनी कस्टमाइज बना के कैसा भी ठेका दे सकते हैं, बट आउटकम बेस्ड एक अलग तरीके का ठेका है जिसमें हमको मैन पावर उसी से लेना है कि साहब आप बताइए कितने मैन पावर से आपने काम करा। एंड इफ देन टीसी इज ऑफ द व्यू कि इसको करा सकते हैं तो कराना। अभी रेलवे बोर्ड यही कह रहा है कि आउटकम बेस्ड दिया जाए, जैसे लमसम मेथड कहते थे जो पहले भी देते थे हम लोग बहुत पहले, बट ऑफ लेट आउटकम बेस्ड हैज गिवन गुड सेविंग्स एंड ऑल। So that was from my end. If anything is there, let us know. सर मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो सर, am I audible? I think sir is not able to hear us. I'll try to make a. Yes, ma'am, he is not able to hear, but we are able to hear him. Yes, please hold on. I'll just give him a call.
कैसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो इसमें यही है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड कि सपोज आपके यहाँ कोई ठेका ऑलरेडी चल रहा है, फॉर एग्जांपल OBHS, एंड यू वांट टू डू इट ऑन आउटकम बेसिस, तो आप ये पूछ रहे हैं कि उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। एम आई राइट और एम आई मिसिंग समथिंग? yes sir एग्जैक्टली ना, राइट। सो तो उसमें हमने कैसे किया था पहले हम ये बता दें, और फिर आपको कैसे करना है ये आप लोग समझ लीजिए। हमारे पास ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि जो रेलवे बोर्ड की चिट्ठी थी कि नाउ 4 कोचेस का एक वर्क स्टेशन बनाएंगे, उसके बाद उसका मिनिमम वेजेस ले लिया हमने, उसके बाद उसका हमने टोटल कर लिया कि इसको इतना होना चाहिए कोच। दैट वाज जीरो बेस्ड प्रिंसिपल। बट नाउ हाउ यू विल डू, यू विल राइट अ लेटर टू लक्ष्मी डेमी लखनऊ कि आप हमने दीजिए आपका क्या एस्टिमेशन था, आपका क्या रेट है, LAR क्या है, और उसके बेसिस पे आप LAR अपना पर पोस्ट निकाल के उसके बेसिस पे आप ठेका सीधे सीधे कर दीजिए, सो दैट आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना है। मतलब जिम्मेदारी मैं ये कह रहा हूँ, आपके ऊपर कोई गलत तरीके से कोई इंटेंशन ना है कि आपने कुछ इन्फ्लेट किया आपके करियर के पर्सपेक्टिव से। मैं कह रहा हूँ, you know, you have to see your careers also. Out of any enthusiasm you must not lead into some trouble. तो आप जो जो हो चुका है आप उसका LAR लीजिए। There's a letter also which says कि जेम का कॉन्ट्रैक्ट जेम की LAR के बेसिस पे करें। तो आप हम लोगों से LAR मांग लीजिए कहीं भी जो हो रहा है। आप तो बहुत सारी चीजें कई सब जगह आप LAR ले लीजिए और जो भी 2-3 LAR से कंपेयर करके अपना एस्टिमेट बना लीजिए। इज इट ओके पवन? sir but actually suppose I want to prepare the estimate from the scratch without knowing the things or anything. If you want to prepare, so you prepare like this, जैसे कि हमने अपना suppose for what you want to prepare, suppose you want to prepare for station, Sir, तो station cleaning. स्टेशन के लिए आपको करना होगा तो उसका एरिया सब निकाल लेना है स्टेशन का। You have to take the area of the platform, you have to take the area of the drains, you have to take the area of the side walls of the trains, the bottom of the train, the depth of the train, the walk, the kacha platform, all the length into breadth multiply करके then you enter into the GEM portal itna area, and then the minimum rate is rupees 0.01 per square feet. You will check up it is per square feet or per square feet only it is told. Sir, So per per square square feet feet. तो आपका minimum वो आ जाएगा estimate. Are you getting my point? Yes sir So that will be the estimated. Now you but know that, the catch. that- You but know the this catch. is Nobody will be able to quote below that also. yes sir but this is the service which is available at the GEM. This is the service which is Suppose if available I at want GEM. to custom bid, I want to make it So custom now bid, you want then to how custom bid. Suppose you want to do off coach. so for station cleaning itself you tell sir, suppose So if for I want to station go for cleaning, custom what you want bid, to customize? then estimation how to prepare sir, because we are not So doing- for that, I'm only saying you have to take either of the gem you take. कि भाई you enter area and take a rate. Otherwise, what you do, you see कि whatever minimum manpower you are requiring per shift. That is your apart from gem. है ना? You are asking that ना? Yes, Suppose sir. you say कि you say कि by 2 people or 3 people per shift you will be requiring. So you take your minimum wages of the central government, multiply by that, add to that the consumables which you think will be there, and then that will be your estimate. But again, for making it outcome based, you go to GEM only. Enter the area there total, and but your estimated rate will become this now, which you have calculated de novo. Okay, sir. Understood ना? You have got both Yes, sir. options. Yes, sir. Yes. ये आप तब कर सकते हैं. It is a good discussion. ये आप तब कर सकते हैं if you find the per square feet rate coming to unworkable. मान लीजिए कि आई अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि जैसा पवन ने पूछा कि सपोज साहब हम उसमें डाला हमने उसके रेट ही बड़े कम आ रहे हैं, उसको कोई कोट ही नहीं करने तैयार है, तो आप एस्टिमेट हमारा बड़ा कम हो गया, आप उस तरीके से एस्टिमेट बना लीजिए जैसे कन्वेंशनल बनाते थे, लेकिन उसमें मैन पावर मत लिखिए आप. मैन पावर वही देगा जो कोट करेगा वो अपना मैन पावर देगा. एनीथिंग एल्स? What about the penalty if the quality of work is not good? हाँ, सो हरदेव साहब उसमें आप जैसे मैंने बताया ना एसएलए में आप वही चीजें रिपीट कर, आपको कुछ करना नहीं है. जितना भी आपके नॉर्मल टेंडर का था ना पेनल्टीज, इतनी जे ग्रेड अफसर की, इतनी इसकी, इतनी एचआई की, इतनी इंस्पेक्शन की, इतनी एसएल ग्रेड, सब वो आप एसएलए में इंक्लूड कर दीजिए. पेनल्टी लगाइए, 7 डे नोटिस दीजिए, 48 आवर नोटिस दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए. तो उसमें कोई करने के बाद उसमें कोई अलग नहीं करना है, एसएलए में सब अपलोड कर दीजिए. जब एसएलए इज दी बाइबल, एसएलए इज ओवर एंड अबव दी जीटीसी. उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एसएलए आपका है, जिसमें हमने सर्विस जैसी चाहिए उसको वैसा हम एसएलए देंगे.
ओके ना? ओके सर। हाँ, सर ये आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैन पावर मिनिमम मैन पावर रिक्वायरमेंट उसने दिया है सर्विस हाँ। प्रोवाइडर ने, ये वो और लेना है आपको। एक्चुअली क्या है कि आपको आउटकम बेस से ये मत समझिए आपको, आप अपने ठेके में मांगेंगे नहीं, बस आप ये कहेंगे कि हमको टेक्निकल बिल में ही दो कि तुम कितनों से प्रपोज करते हो साफ कराने। फिर एक एसबीडी में देखिए वो है कि इतने नंबर, एक स्कोर शीट है ना एसबीडी में कि 60 नंबर से ऊपर वाले को पास करेंगे, 20% इसके हैं, मैन पावर के 20 नंबर हैं, एक्सपीरियंस के 10 हैं, 15 हैं, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, एवरीबॉडी इज वेल अवेयर ऑफ दैट स्कोर शीट की नहीं, वो मैं शेयर कर दूंगा, इसी में लगा के अपलोड कर दूंगा। उस तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए, कई फर्म उसमें बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद अब वो जो दे रहा है ना अब कि डिप्लॉयमेंट प्लान, दैट डिप्लॉयमेंट प्लान इज सैक्रोसैंक्ट, और उसमें मैं तो अपने टेंडर्स में लिख भी देता हूँ कि अगर इतने डिप्लॉयमेंट प्लान से नहीं साफ हुआ तो उसको इसी रेट में और भी लोग देने पड़ेंगे, क्योंकि कल को आप मिनिमम वेजेस के भी तो जिम्मेदार हैं एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। आप देखेंगे कि जो उसने डिप्लॉयमेंट प्लान दिया है और जो उसने रेट दिए हैं वो मिनिमम वेजेस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, वरना उसको टेक्निकली अनसुटेबल कर देंगे। राइट राइट सर, राइट। उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड वो दोनों देगा ना सर? हाँ, स्टेट स्किल्ड अनस्किल्ड बिल्कुल, जो आप जैसे चाहेंगे आप उसको बैक कैलकुलेट भी करेंगे ड्यूरिंग पीस। ठीक है सर अगर जो हमने जैसे टेंडर अवार्ड कर दिया, इस कोई भी एक मैन पावर डिप्लॉयमेंट प्लान उसने दिया उसके हिसाब से, हाँ, बट वो हमको लग रहा है कि वो बिल्कुल क्रिटिकल वैल्यू है, विद दैट वैल्यू ही विल बी एबल टू क्लीन द स्टेशन। हाँ, वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा। हाँ, बट अगर वो जब काम करना स्टार्ट करेगा तो उसमें वो अगर जो सही से क्वालिटी उसका नहीं होता है तो क्या हम हाँ। उससे इंक्रीज करने के लिए डिमांड कर सकते हैं? वो तो उसमें लिखा ही है कि वो जो डिप्लॉयमेंट प्लान में लैंग्वेज है वो आप हमसे शेयर कर लीजिएगा। मैं लिखता था कि दिस शुड बी द बेयर मिनिमम एंड इंडिकेटिव, एंड द कॉन्ट्रैक्टर इज बाउंड टू इंक्रीज मैन पावर, मैनो मटेरियल और व्हाटसोएवर। वो रोबोट लाके साफ कराए, बट ही हैज टू गिव अ डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटकम टू द एग्जीक्यूटिव। वो उसका लुकआउट है, वो 10 लोग इंक्रीज करे, रोबोट लाए चाहे जो। ओके सर, बट वी कैन राइट सर ना? ऑब्वियसली वो तो तुम अपने उसी में लिख दो, जो एसएलए में ही लिख दो। डिप्लॉयमेंट प्लान जब मांगते हो लिख देते हैं हम लोग, हमारी लैंग्वेज जो डिप्लॉयमेंट प्लान की तो हम शेयर कर देंगे। ओके सर। Anything else? Think Professor Saab, Smithy, is it all? Is my voice coming? If there are no further questions, so I think I can just thank you all for giving me an opportunity to share my views and my experiences. It's only my experiences जिससे कि share हो रहा है। तो बाकी आप सबको बहुत थैंक्स, प्रोफेसर साहब को थैंक्स, इर्मी डायरेक्टर सर को थैंक्स कि मुझको अपॉर्चुनिटी दी once again to interact. क्या है?